کشمیر کے رہنے والے طالب علم اس وقت پنجاب میں باقاعدہ طور پر پریشان حال ہیں اور گہار لگا رہے ہیں مدد کی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ اس وقت پنجاب سے کشمیری اسٹوڈنٹ جڑے ہوئے ہیں، جس میں تعداد ان کی 25 طالب علم ہیں، جس میں کئی ساری جو ہیں باقاعدہ طور پر لڑکیاں بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بہن جڑی ہوئی ہے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار وجوہات کیا ہیں اور کیوں آخرکار یہ پریشان ہیں۔ ہیلو جی سر۔ جی کیا ہوا ہے آخر؟ سر ہمارے یہاں رجسٹریشن ہوئی تھی انڈر PMKVY اسکیم کے تھرو فیوچر سکلز کے لیے پہ لامرن ٹیک یونیورسٹی ان پنجاب سر۔ جی سر 20 جنوری آلموسٹ ہماری رجسٹریشن ہوئی اور تب سے یہ ہم لوگ وہ لٹکا رہے تھے کہ کلاسز ہوں گی۔ فائنلی انہوں نے ہمیں 28 مارچ کو بولا کہ آپ لوگوں کو اینی ہاؤ ڈپارٹمنٹ آنا ہے اور آپ لوگوں کو یہاں پہ آنا ہے اور آپ کی کلاسز 29 سے شروع ہو جائیں گی۔ جی سر اس کے بعد ہم لوگ آئے ایگزیکٹلی 28 کو ہم نے رپورٹ کیا تو ایک لڑکی میرے ساتھ ہی، باقی سوپور کے تھے اور بھی کچھ اسٹوڈنٹس تھے کشمیر کے، میکسیمم تو سارے کشمیر کے ہی ہیں ہم لوگ یہاں پہ۔ جیسے اویلیبل ہو گیا ہم لوگ پہنچے کیونکہ انہوں نے بہت پریشرائز کیا کہ آپ لوگ ورنہ ڈراپ ہو جاؤ گے، آپ لوگ اس اسکیم میں انڈر نہیں آؤ گے پھر۔ تو کافی پریشرائز کرنے کے بعد ہم لوگ ایسے ہی وداؤٹ تھنکنگ کہ رمضان ہے، عید آنے والی ہے، ہم لوگ چلے آئے یہاں پہ۔ 28 کو رپورٹ کیا تو اس کے بعد 29 کو ہمارا ایسے ہی سیشن رہا ان کے ساتھ، نارمل تھا، کوئی بات نہیں انہوں نے کی، جیسے لگا تھا نارمل چلے گا، اب ہماری کلاسز ہوں گی۔ بٹ اچانک سے انہوں نے 2 اپریل کو ہمیں بولا کہ وی آر سوری، ہم آپ لوگوں کا بیچ سٹارٹ نہیں کر سکتے، ویری رینڈملی۔ اور ہم نے ان کو بولا کہ کیا بات ہے سر، یہاں پہ 2 بیچز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے AI کے لیے، دوسرا ہوتا ہے ویب ڈیولپمنٹ کے لیے۔ تو AI میں ہم لوگ آ رہے تھے 10 اسٹوڈنٹس اور ویب ڈیولپمنٹ میں آ رہے ہیں 16 اسٹوڈنٹس۔ اکارڈنگ ٹو دیم یہ بول رہے ہیں اسکیم کے تھرو جو گائیڈ لائنس ہے تو وہ 30 ہونے چاہیے منیمم۔ سر ہم نے اپنی پوری کوشش کی، جہاں تک بات ہوئی تو ہمیں پتا چلا کہ منیمم از 10، سائز بیچ کا ہے 10۔ سر اس کے بعد جب ان سے بات کی تو یہ ڈینائی کر رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں ہماری مرضی، چلو سائز ہے، آپ لوگ سارے فلفل کر رہے ہو، سارے یہ کر رہے ہو فلفل، ساری گائیڈ لائنس فلفل کر رہے ہو، بٹ ہماری مرضی ہے، ہم لوگ آپ لوگوں کا بیچ سٹارٹ نہیں کریں گے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ہم آف کرتے ہیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ سر نہ ہی جینوئن ریزن بتا رہے ہیں ہمیں کیا بات ہے، نہ کچھ ہی، صرف ہمیں بتا جسٹ ٹو ویکیٹ ہاسٹل۔ سر ابھی بھی ہمیں انہوں نے اچانک سے تھریٹ دی، انہوں نے ہمیں کائنڈ آف کہ پیکنگ کرو، صبح بس آئے گی، اٹھو نکلو۔ سر ہم لوگ یہاں پہ ADC کے پاس بھی گئے، وہاں سے ہم نے پولیس پروٹیکشن منگوائی ہے، وہاں سے ہم نے پولیس پروٹیکشن منگوائی ہے، تو انہوں نے کہا 2 دن تک ان کو ایکسپلینیشن اینی ہاؤ دینی پڑے گی۔ سر جو ریجنل ڈائریکٹر ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر آئی گیس، سر ابھیشیک مینا ان کا نام ہے، ان سے ہم نے بات کی تو وہ کل تک ہمیں بتا رہے تھے کہ نہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے، آپ لوگ بیچ سائز برابر ہو، آپ لوگ ان کو 10 پہ ہی سٹارٹ کرنا ہے، 10 از دا منیمم نمبر۔ بٹ اب انہوں نے پھر اب آج جب ان سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے، یہ ان کی مرضی ہے۔ سر ایسا تو آپ کس کے تھرو آئے ہو، کس کے تھرو اپلائی کیسے کیا ہے، کرائیٹیریا کیا تھا؟ سر اپلائی ہم نے کیا ہے یہاں پہ، سر یہ مطلب وہاں پہ آیا تھا ہمیں کہ ایک یونیورسٹی ہے جو PMKVY کے انڈر لیتی ہے۔ جی سر سر ان کے تھرو ہم نے خود سے یہاں پہ اپلائی کیا رجسٹر، اور ہمیں سر ایک تھے ان کا آئی گیس نام ڈسکلوز کرنا چاہیے، اب اٹس ہائی ٹائم، ان کا نام ادریس بشیر، آئی ڈونٹ نو وہ کدھر کے رہنے والے ہیں، بٹ ان سے کنٹینیوسلی سر جان سے میں نے آپ کو بولا نا رجسٹریشن ہوئی، کنٹینیوسلی ان سے بات ہو رہی ہے کہ کب کلاسز ہوں گی، تو وہ وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کرو بچے جمع، ہاں جانا تو ہے، جانا تو اسپیسیفکلی ہمیں ان کے تھرو پتا چلا ہے اس کے بارے میں۔ کتنے دن ہو گئے آپ کو ابھی؟ سر 28 کو ہم نے یہاں پہ رپورٹ کیا۔ تو جو کرایہ وغیرہ فیئر وغیرہ وہ کیسے مینج کیا؟ سر وہ تو ہم انڈیویجولی آئے نا سر، پیرنٹس کے ساتھ آئے، میرے تو پاپا ساتھ آئے تھے۔ اچھا آپ اپنے خود کے خرچے پر آئے ہیں؟ جی سر۔ ابھی آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ سر یہاں پہ ہاسٹلز میں ہے سر، اب ہم نے سب کلیکٹیولی رہ کے، سر ہم نے آج ADC میں کمپلیٹ کیا نا، تو ان کی وجہ سے یہ لوگ کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ اتھارٹیز کا کیا کہنا ہے، سٹاف کا کیا کہنا ہے؟ سر پرسوں تک تو بہت ویل بیہیو کر رہے تھے ہمارے ساتھ، بٹ آج سے کل سے انہوں نے ہمیں بہت پریشرائز کیا۔ سر ڈائریکٹلی دے آر سیئنگ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، آپ لوگ نکلو۔ آپ کے پاس کوئی اور ہے؟ یس سر یہاں پہ میرے ساتھ عامر، آپ ان سے بات کیجیے، یہ بھی یہاں کے اسٹوڈنٹ۔ جی کروائیں بات۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ عامر کیا کچھ مسئلے ہیں آپ کے؟ سر ہم یہاں پہ لیمرن ٹیک یونیورسٹی میں آئے تھے، پہلے جنوری میں ہمیں رجسٹریشن ہوئی تھی یہاں پہ، تو انہوں نے ہمیں کال کی کہ فیب میں آپ کے کلاسز ہو رہے ہیں، تو کچھ 18 فیب انہوں نے دیا تھا پہلا ڈیٹ،
बट 18 फेब को वहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं अभी क्लासेस डिले हो रहे हैं क्योंकि कुछ बैचेस का अभी कोर्सेज पेंडिंग पड़ रहा है, आपका कोर्स मार्च में होगा। तो मार्च में उन्होंने क्या किया सर कि उन्होंने हमें 28 मार्च को बुलाया यहाँ पे, सबों को कॉल्स किए, एक नहीं 2 कॉल्स की, 3 कॉल्स की। हमने उन्हें कहा कि मैम अगर कुछ हो रहा है, कुछ अगर फैकल्टी की तरफ से हो सकता है कि ईद के बाद आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं अगर आप नहीं आ रहे हो ना तो कोर्सेज यहीं पे फ्रीज हो जाएंगे, आपको फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमने सब रमजान का मतलब कितना होता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, घर वालों ने भी कहा कि नहीं जाओ, बट हमने फोर्स किया तो हम आ गए यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे। आफ्टर कंप्लीटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी उनका ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होते हैं वो कंप्लीट किया हमने, कुछ नहीं बोला। ओरिएंटेशन क्लासेस ली, इंट्रोडक्शन दिया हमने, कुछ नहीं बोला। 2 दिन हो गए, अटेंडेंस फिंगर सब कुछ लिया, बायोमेट्रिक सब कुछ लिया, आधार वाधार सब कुछ रजिस्ट्रेशन करवाया, आधार OTP ले लिया, हम बायोमेट्रिक दे रहे हैं। 2 दिन के बाद दे आर कॉलिंग, हमें नहीं डायरेक्ट बोल रहे, बस ऐसे ही बोल रहे हैं कि हमारे क्लास में टीचर्स आना बंद हो गए। तो हमने कहा कि ये क्यों नहीं आ रहे। फिर वहां से एक मैम बोल रही है कि एक्चुअली ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, ये ट्रेनिंग यही एंड हो रही है। तो हमने उनको कहा कि ये क्यों हो रहा है, कि हमने तो आप लोगों ने बुलाया है, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम थी तो आप 2 दिन रुक जाते। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास एक होता है कि हमें 30 स्टूडेंट्स मिनिमम चाहिए फॉर बोथ 30 फॉर बोथ AI और वेब डेवलपमेंट में। तो जब उन्होंने हमें एक लिस्ट प्रोवाइड की है जहाँ पे उन्होंने खाली 25 ही एनरोल किए जी, और जहाँ पे उन्होंने एक AI में 25 और वेब में उन्होंने 28, मतलब जो उनकी मतलब अपनी वो होती है ना कि एक लाइन होती है कि 30 हमें चाहिए, उन्होंने उसमें से भी 2 कम किए थे, 5 कम किए थे। तो अब उन्होंने कहा कि हमने उनको कहा कि मैम ये हो रहा है तो हमें कुछ रीजन दीजिए कि कोई वैलिड रीजन नहीं हो रहा है। जब इन्होंने आपको बुलाया था, जब इन्होंने कहा था कि आपको ले जाएंगे वहाँ वैकेंसीज हैं, तो उस वक्त इन्होंने जल्दबाजी में कहा था या फिर आराम से आपको कहा था? उन्होंने हमें जल्दबाजी में नहीं, उन्होंने हमें पहले हमें फरवरी में कहा कि बेटा आप लोगों को आना है यहाँ पे, बट फिर उन्होंने कहा कि बैच अभी चल रहा है, कुछ प्रोसेस में कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, आपको अभी नहीं आ रहे हैं, इसको थोड़ा डिले कर रहे हैं क्योंकि इसका वो एक्सटेंड हो गया है डेट, हम आपको इसके बाद इन्फॉर्म करेंगे। जब भी यहाँ पे 28 मार्च को उनसे पहले कॉल कर रही है कि 28 को आपको आना ही बेटा जरूरी है, आप कुछ भी हो जाए। जी, आप किसी और से बात करवा सकते हैं? जी, हम एक लड़की भी है यहाँ पे, अगर आप कहो तो प्लीज बात करवाएं आप। जी, हेलो सर। हाँ जी, क्या कुछ हुआ है, मतलब आप जो खर्चा वगैरह हुआ है आप अपने खर्चे पे आए हैं? जी सर, हम अपने खर्चे पे आए हैं। इवन हमें अपने पेरेंट्स ने मतलब अचानक इन्होंने कॉल की तो हम फ्लाइट बुक नहीं कर पाए क्योंकि वो भी बहुत महंगी हो रही थी, तो हम बाय रोड आ गए। तो हमारा रमजान का महीना चल रहा था, रोजा था यहाँ से, इवन मैं बीमार थी। इन्होंने मुझे बहुत प्रेशराइज किया, नहीं आप बीमार, आप ड्रॉप हो जाओगे। मैंने को बोला मैम 2-3 दिन दीजिए एटलीस्ट, मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं आ जाऊंगी। इन्होंने बोला नहीं आप 1-2 दिन में ही पैकिंग कीजिए, पहले बोला 1-2 दिन में, फिर फोन करे नहीं कल ही आप निकलो और कुछ नहीं हो सकता वरना आप ड्रॉप हो जाओगे। घर वाले क्या कह रहे हैं, घर वाले आपके क्या कह रहे हैं? उन्होंने बोला था ईद तक इनको बोलो रुकने के लिए, मैंने उनको बोला ये बोल रहे फिर ड्रॉप ही हो जाएगा बैच, फिर आप ड्रॉप ही हो जाओगे। उन्होंने भी सोचा हमारे फ्यूचर के लिए, बोला कोई बात नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज करना होता है, कोई बात नहीं। इवन ईद पहली मैं घर के बाहर कर रही हूँ, मैं कभी नहीं घर से बाहर निकली हूँ। मैंने घर वालों को बोला मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, मेरी ईद बाहर हो रही है, तो घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, सब कोई फेस करना पड़ता है, अपने फ्यूचर के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इवन बहुत कॉम्प्रोमाइज करके हम यहाँ आए एंड हम 2-3 दिन अच्छे से यहाँ पे बैठे थे, इवन बहुत अच्छा यहाँ पे मिला, सब कुछ परफेक्टली हो रहा था। अचानक से हमें एक स्टूडेंट फोन कर रहा है, इन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, स्टूडेंट हमें फोन कर रहा है, मैं जम्मू में हूँ, और ये मुझे बोल रहे आप होल्ड पे रहो, यहाँ मत आ जाओ क्योंकि आपका बैच ड्रॉप होने वाला है। तो हम परेशान हो गए, ये स्टूडेंट हमें क्या बोल रहा है। हमने सीधे इनको फोन किया, इवन हम कैंपस में ही थे, हमने इनको डायरेक्ट कॉल की, बोला कि आप लोग ये क्या बोल रहे हो। इन्होंने बोला हाँ बेटा ऐसा ही हो रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब इन्हें हम HOD मैम से बात करवाई, हम वहां पे भी गए, उन्होंने कुछ नहीं माना, उन्होंने बोला बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, आपका बैच ड्रॉप हो ही रहा है। आपकी नजर में, आपके ख्याल में ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या आपके साथ फ्रॉड हुआ है? जी सर, हमारे साथ फ्रॉड ही हुआ। आई थिंक इनको फंड्स का कुछ मसला है, बट ये क्लियरली हमें बोल नहीं रहे। पहले इन्होंने बोला नंबर कम आ रहा है, हमने इनको बोला हम अरेंज करेंगे स्टूडेंट्स, हम लाएंगे स्टूडेंट्स, हम खुद कॉल करेंगे। इवन हमने कॉल भी की, कुछ स्टूडेंट्स कल ही आ गए। इवन आफ्टर कन्वेइंग अस कि आपका बैच ड्रॉप हो रहा है, स्टिल हमने कुछ स्टूडेंट्स को कल ही मतलब बुलाया, कल ही आए हैं हॉस्टल। उनको अभी तक हॉस्टल में उन्होंने रजिस्टर भी नहीं किया, वो ऐसे ही बैठे, रूम मतलब ऐसे खुला था एक, हमने उनको वही रूम दिया।
तो वो कल बेचारे ऐसे, और उनको प्रेशराइज कि आप लोग जाओ यहाँ से वरना हम आपके बैग्स फेंकेंगे, कुछ पता क्या नहीं। घर वाले परेशान हैं आपके? अभी हमने घर वालों को ऐसे इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाएंगे। कुछ लोगों ने किया होगा बट मैंने नहीं किया अपना। इवन हम अभी डिनर कर रहे थे तो इन्होंने बोला कि आप लोगों को 5 बजे कल निकलना है। हम अभी डिनर कर रहे थे, मतलब मुझे अभी मम्मा फोन कर रही थी, वो मुझे बोल रही है, वो मुझे दुआएं दे रही है कि आप पढ़ो अच्छे से। वो ये मुझे एंग्जाइटी इतनी हो गई, मैंने बहुत रोया। इवन फिर ये बोल रहे चुप करो हम नहीं निकालेंगे। फिर ने अपना वो बयान ही चेंज किया। बट हमें अब यहाँ पे सेफ फील नहीं हो रहा है। तो जिसके थ्रू आप आए थे आपने उनसे राबिता किया? जी, वो बोले मेरा काम था आपको भेजना, अब आपकी अपनी मर्जी, आप लोग क्या करोगे, मेरा काम था आपको भेजना। इवन स्टिल प्रोसेस में स्टूडेंट्स को मतलब अभी पोस्ट भी कर रहा है इस इंस्टाग्राम पे कि मतलब लैमरिन टेक यूनिवर्सिटी के बारे में वो है, ये यहाँ पे बीएससी नर्सिंग है। ही स्टिल पोस्टिंग द सेम, बट यहाँ पे हमें बिल्कुल सेफ फील नहीं हो रहा है। आप परेशान हैं तमाम तालिब इल्म स्टूडेंट जितने भी हैं वहाँ? जी हम बहुत ज्यादा, इवन ये लड़कियों पे ज्यादा ये कर रहे हैं क्योंकि लड़के तो फिर भी स्ट्रांग है। हमें सीनियर्स भी यहाँ से चले गए, हम लड़कियां 5-6 हैं तो ये हम पे ज्यादा पावर दिखा रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ दरख्वास्त या अपील करना चाहेंगे आप जम्मू कश्मीर इंतजामिया से? जी हम चाहते हैं कि जो हर एक स्टूडेंट, हर एक घर को पता चले कि ये फ्रॉड हो रहा है, ताकि यहाँ पे कोई और ना आए, हमारी तरह किसी और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। जो हमने फेस किया वो कोई और स्टूडेंट फेस ना करे। हम बस यही बोलना चाहते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश करूंगा कि तमाम लोगों तक ये पहुंचाए, इंतज़ामिया तक पहुंचाए और इंतज़ामिया इन पे जो है कड़ी से कड़ी एक्शन ले, इंटरवीन करे इस मसले में कि आखिरकार पूरे वजूहात क्या है। मैं आपको बता दूं कि 25 के करीब तालिब इल्म ऐसे हैं जो इस वक्त पंजाब में परेशान हाल हैं, जिसमें हमारी बहनें भी हैं। और ये पूरा जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थ्रू एक शख्स आते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं और उनके थ्रू इनको कहते हैं कि आपको कोर्सेज जो हैं वो करवाए जाएंगे लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी इन पंजाब में, और वहाँ पर ये चीज़ें आप सामने आ रही। तो फिलहाल मैं ये कहूँगा कि रमज़ान का महीना है, तमाम हमारी बहनें फंसी हुई हैं पंजाब में। भाई भी ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी उम्मीद से गए थे और घर वाले भी इस उम्मीद पे हैं कि हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ने गए हैं। मगर अभी भी ये चीज़ें जो है आपके जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की नाक तले हो रही हैं। और अफसोस की बात है कि इस तरीके की हरकत आज के वक्त में भी कोई होती है। तो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से गुजारिश रहेगी कि आखिरकार इन पे, इस मसले पर इंटरवीन किया जाए और इनके साथ इंसाफ हो, जल्द से जल्द इंसाफ हो, क्योंकि ईद भी करीब है और ईद के चलते कई सारी परेशानियों से ये ना जूझे, ताकि जल्दी से इनके जो है परेशानियों का अजाला हो सके। देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।